Morning, dear students. I hope you all are fine in your home and taking care of your health. Stay home, stay safe. Today, our topic The Man Who Empowered the Blind, Part 4, page number 50. After many months of hard work, when Laus was 20 in 1829, he had worked out his system. He designed a letter hand punch that could be used within a block cell containing 6 holes where there was a special combination of dots for every letter of the alphabet, for every number and every letter of the alphabet, for every punctuation mark. Another blind person who knew the code could feel the dot made by the punch and read right what Barley had written. तो जब ये कितने साल का हो गया था, 20 साल का हो गया था, तो इसने बहुत सारी मेहनत की। तो अब वो जो उससे वो डॉट के ज़रिए इसने ये जो नया सिस्टम निकाला था, तो अब ये जो ब्लाइंड लोग हैं ये आसानी से क्या करते हैं, उस डॉट के ज़रिए इनको पता चल जाता था कि बॉर्ली ने मतलब कौन से अल्फ़ाबेट कौन सा लेटर लिखा है या वो क्या लिख रहा है, ये एकदम से पहचान सकते थे. After a while, Lawas learned to punch right among almost as fast a person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost quickly as sighted people could read printed types. Laus pointed out a number of stories as they were read to him from book. He knew the method, but now the authorities of the institute could not accept Barley's idea. तो अब ये क्या करता था, उन न्यू आइडिया के साथ अब ये बहुत सारी स्टोरियाँ लिखता था, बुक लिखता था उन लोगों की मदद के लिए. तो अब इसने ये जो मेथड इस मेथड से अब ये बहुत उनकी मदद कर रहा था, मगर इसको इंस्टीट्यूट का ये जो वो इसको क्या नहीं एथराइज़ नहीं कर रहे थे, उनको ये आइडिया इनका एक्सेप्ट नहीं हुआ था. But Barley went on with his work. He taught his blind pupils in private after school hours. They soon realized how much better his method was, and they told other blind people about it. Barley began to get letters from the blind in every country in the world, beginning for instruction. तो बार्ली को बहुत मतलब इस मेथड से जब उन्होंने नहीं माना तो इसको बहुत क्या हुआ, मुश्किल हुई, बहुत मुश्किलातों का सामना किया, मगर इसने प्राइवेट स्कूल खोला, वहाँ पर ये अंधे लोगों की इसी मेथड की वजह से मदद करने लगा. तो बहुत और हर एक मुल्क में इसका क्या चलने लगा, ये इसकी इंस्ट्रक्शन ये जो चल रही थी. फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बार्ली वर्क टू इम्प्रूव हिज सिस्टम. अब कुछ से आपने इस सिस्टम को इम्प्रूव किया. ही वर्कड एट हिज टीचिंग एंड हिज म्यूजिक टू. ही डिज़ाइन ए स्पेशल कोड फॉर म्यूजिकल notes so that a blind musician like himself could learn to play secure by reading the music with his fingertips. तो अब इसने क्या किया, उन ब्लाइंड लोगों को म्यूज़िक के ज़रिए, उन कोड्स के ज़रिए फिंगर वो कैसे उनको करता था, इसने सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया. Letter by letter, Barley and his friends punched out textbooks, storybooks, and songbooks. Then some printers invented machinery for making copies of these books, but still his system was hardly known to the public. To Barley's great disappointment, it had not catch on. तो इसने बहुत सारी ये म्यूज़िक की बुक्स निकाल ली, स्टोरी बुक, टेक्स्ट बुक्स, लेकिन ये बहुत टाइम तक चल नहीं सकी. तो अब इसको बहुत क्या हो गया था, दुख हो गया था. ये बहुत इसने मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में देखी थी. Lau's health began to fail, and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him, but he was still to have his moment of trip. Among his music people was a blind young who was a very fine pianist. Barley had taught her his dot method of reading and writing music. तो अब इसकी सेहत भी अब हो गई थी ख़राब. ये सोचता था कि मैं अपनी ये मेहनत कब मैं कामयाब हो जाऊंगा. तो ये करते करते मैं ये सिस्टम आगे बढ़ाते बढ़ाते इसी तरीके से मैं मर जाऊंगा, मगर मैं कामयाब नहीं हो सकता.
तो इसने एक लड़की को क्या सिखाया था म्यूज़िक के ज़रिए, एक ब्लाइंड लड़की को इसने पियानिस्ट बनाया था, उसको म्यूज़िक सिखाया था, उसको ये सब चीज़ें, ये जो डॉट वगैरह, ये कोड वगैरह इसे बताए थे। One evening she gave a concert which was highly appalled. The young girl held up her hand for silence. Then she made a speech about Barley and what his method has meant to her. I beg you to applaud him, not me, she said. I play through his eyes. तो एक शाम को ये लड़की जो है ये तजवीज़ मशवरा कर रही थी और इसने क्या किया, इसने स्पीच की जिसमें इसने बार्ली की बहुत तारीफ़ की थी कि उसने, मैं नहीं, इसने ही ये सब कुछ अंधे लोगों के लिए किया, ये सिस्टम निकाला, ये सब चीज़ें, इसने वो उस स्पीच में बहुत सी तारीफ़ें की थी। द नेक्स्ट डे द पेरिस न्यूज़पेपर वेर फिल्ड विद स्टोरी अबाउट बार्लीज एंड हिज वर्क for his blind people. So much interest was said that many schools finally agreed to use his system. तो दूसरे दिन पेरिस के जो न्यूज़पेपर, हर जगह पर ये स्टोरी क्या हो गई थी, छप गई थी और ये बहुत मशहूर हो गई थी। तो इसमें बहुत कुछ लोगों को बहुत क्या किया गया था और कुछ लोगों का बहुत इंटरेस्ट था और बहुत से स्कूलों ने इसे क्या किया था, एग्री किया था। When Barley heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. This was 1852 when Barley was 43 years old. 2 years later, the Institute for the Young Blind officially adopted Lau's system and named it after him. Books were translated into Barley and through books, the blind found empowerment they had never dreamt of. तो अब लास्ट पर क्या हुआ, बार्ली आखिर कामयाब हो गया, इसने बहुत सारे सिस्टम किए अंधे लोगों के लिए। तो अब लास्ट पर ये क्या हो गया, कामयाब हो गया। जब ये कामयाब हुआ तो इसकी उम्र थी 43 इयर्स ये था। तो इसने उनके लिए वो स्कूल खोला, बुक्स, सब चीज़ें। तो आखिरकार कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसने बहुत सारे मुश्किलातें उठाई लेकिन आखिर पर ये कामयाब हो गया। इसने अंधे लोगों के लिए ये सिस्टम तैयार किया और उन्हें आसानी से अब वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, हाफिज़।